Assalamu alaikum, students of class 9. How are you all? Students, hopefully you all will be fine and safe. Student, in the previous lecture, we studied about the comparison between the covalent and coordinate covalent bond. And I have given you the homework. Please do your homework on time and submit your homework registers in school for checking. As you know that schools are going to open, inshallah school will reopen soon, so please try to complete your written work in the registers, otherwise it will be very difficult for you to cover the previous work. Okay students, so please take it seriously. Now students, today we are going to start the new topic of this chapter number 5, that is chapter number 5, chemical bonding. The topic is metallic bonding. Okay, metallic bonding. Now what is the metallic bonding? Right, by the name you can understand the bond which is found in the metallic form, in the metal form. Okay, that will be called as the metallic bonding, but I will define it properly. It is defined as the combination of electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of atoms. It's called as the metallic bonding. Okay, I repeat students, what is the metallic bonding? Metallic bonding is defined as the combination of electrostatic attraction between the electrons and the nuclei and the positive nuclei of atoms. Okay students, it is the definition. Now I will explain it. देखिए definition क्या है? The combination of electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of atoms is called as the metallic bonding. ठीक है, देखिए क्या मतलब है इसका, यानी जब फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटम. ठीक है, देखिए अट्रैक्शन किसमें होगी? ज़ाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में ही होगी ना, के बीच में ही अट्रैक्शन होगी. तो इलेक्ट्रो चार्ज से है, इलेक्ट्रो का वर्ड जो है चार्ज से है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस उसकी जो स्टेट है, इसकी जो इसकी नेचर है. ठीक है, द चार्ज विल बी ऑफ पॉजिटिव टाइप और द नेगेटिव टाइप. चार्ज दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो अब कोई एटम होगा तो उसके चार्ज किस तरह के होंगे? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. किसमें होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होगा. वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होगा, यानी पूरे न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड होगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस से की सराउंडिंग में होगा, ऑर्बिट्स में होगा, तो फैला हुआ होगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्जेस की अट्रैक्शन होती है. ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और जो है और न्यूक्लियस ऑफ एटम यानी प्रोटॉन्स के बीच में जो है जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मेटालिक बॉन्डिंग को देखते हैं. Okay, now students, let's see this diagram. Okay, I'm going to explain this the metallic bonding through this diagram. Okay, first of all we will see one atom. ठीक है, सबसे पहले हम एटम को जो है वो कंसीडर करते हैं. ठीक है, like it is one atom of any metal. कोई भी मेटल एक एटम है. Okay, it is the nucleus. In the nucleus there is the proton and there is the neutron. Neutron has no charge. ठीक है, no charge, and they have the positive charge. So this positive charge will be considered that it is spread at all over
न्यूक्लियस। ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि ये पूरे न्यूक्लियस के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, अराउंड इट इज देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, इसकी सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि आपके पास जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और जो है प्रोटॉन पे ओके स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। अब देखें यहाँ पे इन द सेकंड डायग्राम देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, दे आर द एटम्स ऑफ आयरन। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आयरन, आयरन इज द मेटल, तो मेटल मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने मेटल आयरन का एक जो है एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो दे आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आयरन, ठीक है। अच्छा, यू नो दैट आयरन इज अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है, जैसा इन द मेटालिक फॉर्म, तो इसके एटम जो है बहुत क्लोज होंगे, दे विल नॉट हैव अ डिस्टेंस, कोई गैप नहीं होगा, कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, सबको पता है ये सब बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, डायग्राम में मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टेंस शो किया है ताकि आपको डायग्राम समझाने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा देखें क्या है, यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट एटम, लाइक इट इज द फर्स्ट एटम, ठीक है, सेकंड एटम, फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, थर्ड एटम, बहुत सारे एटम्स, ठीक है। अराउंड दिस देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कर रहे हैं, राइट, दिस आर द दैट इज द मूवमेंट, ठीक है। ये जो है एक्स-रे जो हमें उससे जो है इसमें अगर हम एक्स-रे ले किसी इसका, तो उसमें जो है इसका एक जो है ब्लड से इमेज वो बनता है कि इनके मूवमेंट का या इनके जो स्ट्रक्चर है उसका ब्लड से इमेज वो जो है उससे हमें ये सब चीजें पता चलती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहलाता है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहते हैं, क्लाउड, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक टर्म है, क्लाउड कहते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं और मूव करते हैं तो एक ब्लर सा इमेज बनता है, ठीक है ना। लाइक जैसे फैन होता है, फैन के जब विंग्स जो है मूव करते हैं तो देखिए हमें फैन के विंग्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 3 विंग्स नहीं समझ में काउंटेबल नहीं होते वो उस वक्त, तो बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन जब बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं तो बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर में, तो उनकी जो है मूवमेंट को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर सकते, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ क्लाउड, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है इसे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, this one the nucleus has a positive charge, so it will be called as a cation, ठीक है रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाता है cation, and the electrons they will have the negative charge, so they will be called as a anion here. Okay students, so cation in an order you can see in the diagram, ठीक है। डायग्राम में देखें जो लेबलिंग की हुई है, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या मतलब है, ये सी मींस समंदर, समझ लिया, ये क्लाउड समझ लें, ठीक है, एक ही टर्म बात है, सी कह ले क्लाउड कह ले, ये बहुत कोई बड़ी चीज को शो करने के लिए, ठीक है। डीलोकलाइज्ड मींस दे आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, लोकल नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, दे आर मोबाइल, मोबाइल मीन्स मूविंग थिंग, ठीक है, मोबाइल को मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस मीन्स जो उनके ऑटोमोट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहा गया है कि मोबाइल है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको जो है शो किया गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, इस तरह से देखिए आप, जो पॉजिटिव चार्ज है, किसकी पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैटाइन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे एनाइन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है वो कैटाइन के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ये डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसमें जो है मेटालिक बॉन्डिंग को शो किया गया है कि मेटालिक बॉन्डिंग में जो है बहुत सारे एटम्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, वो इस तरह से शो करते हैं हम कि एक बहुत बड़ा सी है इलेक्ट्रॉन्स का, ये बहुत बड़ा क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने प्रोटॉन्स के जो है मूव कर रहे हैं। और ज़ाहिर मूवमेंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मीन्स हर एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके साथ अट्रैक्शन होती है। यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम को छोड़ के नहीं जाते कहीं भी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं पर रहेंगे, ठीक है, इसकी गिरती मूव करते रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी गिरती मूव करते रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर यहाँ चले जाएं, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएं। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अटैच रखता है, ठीक है, अपने साथ अट्रैक्ट
करके रखता है, अपने साथ अटैच करके रखता है, जिसकी वजह से जो है इनके चार्जेस इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज ऑल अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग। आई थिंक इजी है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी से टॉपिक है। ओके ना, देयर आर फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर, like for example a substance consists in the second para class, it is given here in the vertical ladder lines देखिए second para में fifth line I think, a substance consisting of positively charged ions fixed in a crystal lattice with negatively charged electrons moving freely through the crystal। क्या कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो फिक्स होते हैं, एटम जो है फिक्स होता है, और उनके जो है जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। वो जो है ज़ाहिर है एटम की गिर्द, न्यूक्लियस की गिर्द जो है वो एटम में न्यूक्लियस की गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एटम है, एटम की गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लाउड फॉर्म में या सी फॉर्म में, ठीक है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और जो है मोबाइल फॉर्म में है, मोबाइल यानी मूविंग फॉर्म में है। ठीक है, मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा कुछ न्यू पॉइंट्स जो इस टॉपिक में दिए गए हैं, दे आर अबाउट द, ठीक है, आई विल रीड दिस पॉइंट्स क्लास। ये देखिए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये जो है मैटर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट, ये देखिए इसमें फोर्थ पैरा है, ये सर्वे ऑफ द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ फोर्स होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ क्रिस्टल मस्ट बी अनयूजुअल। ये जो क्लाउड फॉर्म है ना, इसको क्रिस्टल का नाम दिया गया है, ये मतलब ये पूरा नेटवर्क है, इट इज द क्रिस्टल। ठीक है, इट इज द नेटवर्क दिस ऑल। ठीक है, ये जो आपके पास पूरा मैटर है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स है सारे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का सिस्टम है, इसको क्रिस्टल जो है नेम दिया गया है, क्रिस्टल कहा गया है इसको। यू कैन सी दैट इट इज अ क्लाउड फॉर्म, इट इज द सी लाइट, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized in मोबाइल फॉर्म। ठीक है, और इट इज द क्रिस्टल फॉर्म, नेटवर्क फॉर्म, यानी आप देखिए बहुत सारे एटम्स का नेटवर्क है जो कि काम कर रहा है, ट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट शो कर रहे हैं। ओके क्लास।